students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is dealing with an emergency. जब भी emergency आती है तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें उसके साथ अच्छे से क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए. तो यही हमें ये चैप्टर समझाने जा रहा है. आइए इसे पढ़ लेते हैं. डू मॉक अर्थक्वेक ड्रिल इन क्लास. ऐसा आपने किया भी होगा अपने स्कूल में. रिमेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड ग्लास. एट द साउंड ऑफ द बेल गेट अंडर द डेस्क एंड परफॉर्म द ड्रॉप कवर एंड होल्ड स्टेप until the shaking stops. Once the shaking stops, leave the building in a calm and orderly manner. Use your school bags to protect your head if enough desks are not available, or when there are no desks at all, make sure not to run during an earthquake. तो ये जो आपने मॉक ड्रिल है ये आपने अपने स्कूल में भी की होगी. इसमें बताया जाता है कि जब भी अर्थक्वेक आता है, जब धरती शेक करती है, तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, जो आपके डेस्क वगैरह होते हैं उसके नीचे आप छुप सकते हैं. अगर डेस्क वगैरह सफिशेंट नहीं है तो आप अपना स्कूल बैग लेकर भी जा सकते हैं अपने हेड को कवर करके. Learn the evacuation route from your class. Once you are out, stand in a line while the teachers do a body count of the students present. A situation that poses an immediate risk to healthy life, property or environment is called an emergency. Wars and natural disasters may lead to an emergency. During such times, many people lose their means of livelihood and become homeless. In that situation, they required immediate help in terms of food, clothing, medicines and shelter. तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है हमारे पास जिसमें कुछ भी क्या होता है, सडन हो जाता है, अचानक हो जाता है, जो हमारी लाइफ को क्या करता है, रिस्क में डाल देता है. जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ होगी, वॉर का जब आपके छिड़ जाता है, कुछ भी कहीं भी वॉर छिड़ जाती है, उसका आपका अनाउंसमेंट होती है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हमें अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए. Natural disasters are the calamities that are caused naturally. These are sudden and beyond our control. A lot of damage, both of life and property, are caused by natural disasters. Some of these are earthquakes, volcanoes, tsunami, cyclones, floods, droughts and एपिडेमिक्स. तो नेचुरल डिज़ास्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे कैलामिटीज़ होती हैं जो नेचुरली होती है, मतलब जो नेचर के द्वारा होती है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अचानक से आते हैं. जैसे आपने अर्थक्वेक महसूस किया होगा, जो धरती होती है अचानक से शेक करती है. आप घर के अंदर आप देखते हो आपकी जो फर्नीचर वगैरह है वो अचानक हिलने लग जाता है, ठीक है. क्यों होता है, क्योंकि अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक के साथ साथ वॉल्केनोज हो गए, सुनामी हो गए, ये नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर आ जाते हैं. Earthquakes, sudden movements within the earth, shakes its crust, which is called earthquake. Earthquakes are more frequent than any other kind of natural calamities. Every year, different parts of the world experience hundreds of earthquakes. On 26 January 2001, a massive earthquake caused great destruction in major cities of Gujarat, mostly in Bhuj and Ahmedabad. तो जब आपको सडन मूवमेंट फील होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, वो अर्थक्वेक की वजह से होते हैं. और आपने इंडिया में सुना भी होगा 2001 में एक मैसिव अर्थक्वेक आता गुजरात और भुज के आसपास, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए थे. Thousands of people lost their families and property. Uttarakhand is also in news recently because of major earthquakes. The earthquake occurs due to the movement of the plates below the Earth's crust upper surface. Our Earth is made up of many irregular plates of rocks, most parts molten material below them. When two plates collide, the Earth shakes, resulting in cracks on the upper surface. Sometimes the plates shrink after lowering of temperature. This shrinkage produces pressure of one plate over the other and finally a movement or shaking. अर्थक्वेक जो होता है ये किस लिए अकर करता है, आपने सुना भी होगा, जो हमारी धरती होती है उसके अंदर ना कुछ प्लेट्स होती हैं जो धीरे धीरे मूव करती हैं, लेकिन कभी कभी इनका मूवमेंट इतना फास्ट हो जाता है कि आपस में कोलाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से धरती जो है वो शेक करती है.
As a result of earthquake, huge buildings, poles, trees, etc. are smashed in no time. Bridges and flyovers also come down. Sometimes cracks are formed in the earth and the buildings along with people and animals are buried inside. अर्थक्वेक कभी कभी इतना मैसिक होता है, ह्यूज होता है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी क्या करता है, गिरा देता है, पोल्स गिरा देता है, ट्रीज़ वगैरह अपनी जगह से उखड़ जाते हैं, जितने भी आपके फ्लाईओवर्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, वो टूट जाते हैं. ठीक है. रीड मोर. The largest earthquake ever recorded in the world was in Chile in 1960. It measured a 9.6 on the Richter scale. तो अब तक का जो मैसिव earthquake आया वो कहाँ आया था? चिली में आया था 1960 में. The intensity of an earthquake is measured by an instrument called seismometer or seismograph. The intensity divided from 1 to 12 is called Richter scale. The different intensities on the Richter scale and their effect are as below. अब जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है कि वो कितना बड़ा आया था, कितना मैसिव था, उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सिस्मोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ कहा जाता है. फिर ये जो इंटेंसिटी होती है इसको डिवाइड किया जाता है 1 से लेकर 12 तक, जिसको हम रिस्टर स्केल कहते हैं. 2.5 recorded on seismometer but the earthquake is not felt by the people. तो ये जो 2 के आसपास जो अर्थक्वेक होता है ना, ये लोगों के द्वारा फील नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत माइल्ड होता है. 3.5 the earthquake felt by many people but largely indestructive. अब 3.5 का जो अर्थक्वेक होता है ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, शेक करेगा, लेकिन इतना ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होता. 4.5 लिटिल डिस्ट्रक्शन, थोड़ा बहुत इसमें डिस्ट्रक्शन होती है, जैसे आपने देखा होगा आपके जो फ़ोटो वगैरह लगी होती है दीवारों पे वो नीचे गिर जाती है. 6.0 हैवी डिस्ट्रक्शन. अब वो 4.5 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं अर्थक्वेक उसमें डिस्ट्रक्शन होना संभाविक है. 7.0 ब्रेक्स ह्यूज कंस्ट्रक्शन. ये बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग हो गए, ब्रिजेस हो गए, फ्लाईओवर हो गए, उनको ये क्या करता है, तोड़ देता है. 8.0 टर्निंग द बिल्डिंग इनटू अ हीप ऑफ रबिश. 8.0 जो अर्थक्वेक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा मैसिव होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो होती है वो गिर जाती है. Now precautions: do not panic and keep calm. If indoors, take cover under a heavy table or a bed and hold on to something strong. Stay away from glass objects and do not use the lift. If you are outdoors, move away from objects like buildings, trees, etc. that could fall on you. क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए जब अर्थक्वेक आता है? आपको एक तो विंडोज़ के पास नहीं रहना क्योंकि वो शीशे के होते हैं. ठीक है, अगर वो टूटे तो आपके ऊपर गिरेंगे, आपको चोट लग सकती है या आपकी जान भी जा सकती है. आपको ऐसे एरिया से अपने आप को कवर कर लेना है जो क्या हो, जो स्ट्रांग हो, जैसे कि बेड वगैरह होते हैं, आप तकिया वगैरह ले सकते हैं या टेबल के अंदर आप छुप सकते हैं. ठीक है. Brainstorm: break a block of foam rubber in half. Put the piece on a smooth table in such a way that rough edges on the foam are placed together. Push the two pieces together in such a way that one piece move towards you and the other one way from you. Keep pushing and pulling smoothly. Discuss your observation with your teacher. Do you think that earthquake take place in a similar way? आपको क्या करना है, फोम रबर जो होता है उसके आपको एक ब्लॉक ले लेना है, उसको आपको 2 पार्ट में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, उसको तोड़ लेना है. फिर आपको उसको क्या करना है, रब करना है. दोनों पार्ट्स को इस तरीके से आप उनको रब करेंगे. एक पार्ट आप आगे की तरफ लेके जाएंगे तो दूसरा पीछे की तरफ, फिर दूसरा आगे की तरफ लेके जाएंगे. इस तरीके से उनको करेंगे. और क्या आपको इस एक्टिविटी को करके ये पता चला कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो भी सिमिलर वे में आते हैं. If in a crowd place, do not rush for the door. Instead, take a cover under a heavy table or desk. Be prepared for aftershocks. Keep an emergency kit, water and dry food ready in a bag next to you. Wear shoes to avoid cuts and bruises from broken glass. Take part in community crisis preparedness drills. अगर आप क्राउडेड एरिया में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डोर की तरफ रश नहीं करना चाहिए. ठीक है, इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, किसी टेबल या डेस्क के नीचे अपने आप को कवर कर लेना चाहिए. वॉल्केनोज के बारे में जान लेते हैं. Volcanoes are hills or mountains with a wind or crack. A volcanic eruption is the brushing out of the hot melted rock, gas, steam and ash from deep inside the earth. Whenever the pressure of the molten rocks called lava increases, it moves up through the wind and
put the pressure on the upper covering of the vent. On eruption, the red hot lava jumps out of the vent and flows on the hilly slopes towards the plains. Whatever comes in the way of hot lava gets burned. वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो भी नेचुरली होता है, ठीक है, ये इसमें मैन मेड कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें हम ह्यूमंस का कोई इंटरप्शन नहीं होता। वॉल्केनिक आपके क्या होते हैं, वॉल्केनोज हिल होते हैं, माउंटेन की तरह होते हैं, जिसमें एक क्रेट होता है जिससे जो लावा होता है, मेल्टेड लावा जो होता है वो बाहर की तरफ आता है। ये इतना गर्म होता है कि ये किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है, उसे जला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि उस एरिया में, विद इन एरिया में आपको नहीं जाना चाहिए। Precautions to save themselves from the volcanoes, people should not reside near them. They should also make enough water bodies around the volcano hills. On eruption, they should at once rush to far away places. Take the animals with you or free them. तो बेटर यही होगा ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे आपको लगता है वॉल्केनिक इरप्शन कभी भी हो सकता है, आपको ऐसे एरिया से खुद भी दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी दूर रखना चाहिए। Tsunami, it is a series of giant ocean waves produced by an underwater earthquake or volcanic eruption. These waves at a time 30 meter high and 200 kilometers long can travel at the speed of 250-900 kilometer per hour across entire ocean. अब वो जो अर्थक्वेक्स होते हैं या वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो धरती में ही नहीं होते बल्कि ओशन के अंदर भी होते हैं, समुद्र के अंदर भी होते हैं, जिनकी वजह से सुनामीज़ आती हैं। इनकी लहरें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ये बहा कर ले जाती हैं। Precautions: listen to radio and TV reports and act according to tsunami. Warnings: close the doors and windows if your house is strong or move on highland. Do not go out into the sea. Stay away from power lines, trees and rivers if you are in vehicles. Wear worn waterproof clothes. Keep important papers, food and an emergency kit in a waterproof bag till an all clear signal is given. Do not move away from the shelter. अब सुनामी के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। सुनामी की आप अगर आपको वार्निंग्स वगैरह पता करनी है तो आप उस टाइम रेडियो वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है, टीवी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। न्यूज़ चैनल में आजकल बताया जाता है कि कब क्या होने वाला है, मौसम की जानकारी दी जाती है, तो उससे आपको अपने आप को क्या रखना है, अपडेटेड रखना है। अपने डोर्स एंड विंडोज़ को क्लोज रखना है जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप बाहर निकलते हैं तो वाटरप्रूफ कपड़े लेकर के चलें। अपने जो आपके पेपर हैं, फूड है, इमरजेंसी किट है, वो भी आपको अपने पास रखनी है। Read more about 80% of tsunamis happen within the Pacific Ocean's ring of fire. तो ज़्यादातर सुनामीज जो आती हैं वो पैसिफिक ओशन में आती हैं। Now cyclones. A cyclone is a violent storm with very strong winds which move in a circle. A cyclone brings torrential rains. These are caused by two low pressure systems towards which the strong winds gush at great speed which could be 100 किलोमीटर पर आवर। तो साइक्लोन्स के बारे में जान लेते हैं। अब साइक्लोन्स जो होते हैं आपके वायलेंट स्टॉर्म होते हैं, ठीक है, और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये एक साइकिल को मूव करते हैं, मूव कर सकते हैं और उसको बल्कि उड़ा कर भी लेके जा सकते हैं। Precautions: pay close attention to cyclone alerts. Move to higher areas and stay away from the sea, trees or big wear worn and waterproof clothes. Keep a waterproof bag filled with food, water and an emergency kit. Do not leave your shelter till an all clear is declared. तो प्रिकॉशंस यहाँ पे आपको क्या लेनी चाहिए। सबसे पहले तो साइक्लोन अलर्ट के बारे में आपको अटेंशन जो है उससे आपको अपडेटेड रहना चाहिए। अगर साइक्लोन आ जाता है तो हायर प्लेस में आप चले जाओ, किसी ट्री बिल्डिंग के आसपास मत खड़े रहो। फ्लड्स के बारे में जान लेते हैं। आपको सुनने में आता है जब मानसून सीजन होता है तो बहुत सारे एरियाज़ में क्या होता है, बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है। अ फ्लड इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग बिग एरियाज ऑफ लैंड। Floods are caused by heavy rainfall, high tide along with a storm, sudden melting of snow or the collapse of a dam. Every year the rivers overflow their banks in the rainy season causing damage to crop, houses, cattle and people. तो ये क्यों होता है, फ्लड्स क्यों आते हैं? क्योंकि रेन इतनी ज़्यादा होती है कि जो नदियों का पानी होता है ना वो ओवरफ्लो करने लग जाता है। जब वो ओवरफ्लो करने लग जाता है तो वो आसपास के एरिया में स्प्रेड हो जाता है। स्टेट्स लाइक आसाम, Odisha and Bihar are flooded every year. Deforestation in West Bengal, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Nagaland causes frequent floods. Heavy floods destroy
whole village, a number of cattle and people are drowned in the water। तो भारत के इन इन राज्यों में फ्लड्स की जो संभावनाएं वो देखी गई हैं, ठीक है। फ्लड की वजह से लोगों का जो जीवन शैली होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उनके कैटल्स बह जाते हैं, उनकी जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनका जो जनजीवन होता है वो भी अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए ऐसे टाइम पे? द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर सॉइल बाइंडर्स, पीपल शुड ग्रो इनफ ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, हाई एम्बैंकमेंट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द विलेजर्स इन द vicinity of a river। They should also build their house on raised platforms। Dams are built to control the floods successfully। तो पहले से प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए नदियों के किनारे, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, उसको बहने नहीं देते, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो बहकर आसपास के इलाकों में नहीं चला जाता। लोग डैम्स वगैरह बिल्ड करते हैं ताकि जो पानी है उसको रोका जा सके। People living in flood-prone areas should keep life-saving tubes and enough food, clean water and medicines। They should move to higher place or at the time of floods they may get onto the roofs of their house in case of sudden floods। ऐसे टाइम पे अब लोग अपना घर तो नहीं छोड़ सकते, तो वो अपने छत पे शिफ्ट हो सकते हैं, या स्टिल्ट हाउस के बारे में आपने सुना होगा जो धरती से थोड़ा ऊंचाई पे बनाया जाता है, तो ऐसे घरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे आपको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अपने पास रखनी है, क्योंकि फ्लड के बारे में नहीं पता कि ये जो सिचुएशन है कब ख़त्म होगी। Droughts and famines, a period of dry weather without a rainfall is called drought। अब कभी कभी क्या होता है, कोई इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, तो ऐसे इलाकों में पानी की कमी की वजह से क्या आता है, अकाल आता है, सूखा पड़ जाता है। Sometimes it does not rain enough even in rainy season। Most areas of our country depend on the natural rains for irrigation। This result in the shortage of crops। Much shortage leads to a famine in the region। The people depending on farming face starvation। Large areas in Rajasthan, Gujarat and Bihar are affected by drought almost every year। तो ये कुछ राज्य हैं हमारे देश के जहाँ पे बारिश की कमी की वजह से क्या रहता है, सूखा रहता है, तो जो फसलें होती हैं वो भी सूख जाती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ता है। Precautions to avoid drought: must plant more and more trees। Trees attract rains। We must also arrange a definite means of irrigation like wells, tubewells and canals। We should make ponds to store rainwater। We should store food enough for difficult days। ऐसे जगह पे आप ट्रीज़ उगा सकते हैं। ट्रीज़ जो होते हैं वो रेन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको आपको सुव्यवस्थित करना चाहिए, रेन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप कुएँ खोद सकते हैं, ट्यूबवेल वगैरह खोद सकते हैं, कैनल्स बना सकते हैं। Management of the effects of natural disasters: whenever any disaster strikes, the world community comes forward to help the victims। Hospitals, ambulances, police stations, fire brigades, the Red Cross of the home country all work around the clock to help people and save lives। People and charitable groups from all over the world send food, money and medical supplies as aid to areas affected by natural disasters। तो गवर्नमेंट का भी अपना रोल होता है। इन डिज़ास्टर्स के बाद कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है, उनको सारी सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं ताकि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, उनको हेल्थ एड वगैरह दिया जाता है। जो लोग इसमें इंजर्ड हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो उनको भी हॉस्पिटल्स वगैरह में पहुँचाया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। There are many non-governmental organizations, NGOs, the world over that provide relief and support to people affected by natural disasters। Many agencies of the United Nations work actively to provide relief and help in the process of rehabilitation of disaster-affected people। The United Nations Disaster Management Team UNDMT in India consists of the UNICEF, UNESCO, ILO, FAO and WHO which comes forward to help in times of need। तो इतनी सारी संस्थाएं जो हैं वो काम करती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, या जिन लोगों को नीड होती है उनके लिए ये आगे आती हैं और उनके लिए काम करती हैं। The armed force organize rescue operations, help clear roads so that relief can reach early।
They also send medical units during emergency and help in distribution of food, medicines, etc. तो ऐसे टाइम पे जो हमारी आर्मी की फोर्सेस होती हैं वो भी आगे आती हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं या दूसरे साधन होते हैं जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, वो उन लोगों को जो रेस्क्यू किए जाते हैं या जो वहाँ फंसे हुए होते हैं दलदल में, पानी में या अर्थक्वेक में, तो उनको वो क्या करते हैं, वो उनको फूड वगैरह या मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। The Air Force drops food, water and clothes in the affected areas. The police maintain law and order during a disaster to prevent anti-social elements from looting and destroying shops and homes. The National Cadet Corps NCC reaches disaster zones to help people. अब ऐसे टाइम पे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा लोग जो होते हैं ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों को और परेशान करते हैं जो दुख में होते हैं या जो फंसे हुए होते हैं, उनको लूटते हैं, दुकान वगैरह लूटी जाती है जो बंद होती हैं। तो ऐसे टाइम पे जो पुलिस होती है वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करती है। Read more in 2013 during the devastating flood and landslide that struck Uttarakhand. The armed forces evacuated more than 1 lakh people from flood hit areas. अब आपने सुना ही होगा 2013 में क्या आया था, बहुत बड़ा एक बादल फटा था जिसकी वजह से बहुत बड़ी बाढ़ आपदा आई थी उत्तराखंड में। केदारनाथ के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे पुलिस ने जो आर्म फोर्स थी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी और काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू करके सेफ जगह पे भी पहुँचाया था। Role of individual and community. Many individuals make a community, so the individual help grow up as a community help. We should learn how to take safety measures in the case of natural calamities. After saving ourselves, we should be ready to save our other fellow humans. Orphan children and people who have lost their loved ones need love and care and someone to talk. We can help in the following ways. ऐसे टाइम पे हमारी खुद की जो कम्युनिटीज़ हैं या हम लोगों का क्या रोल होता है, तो हम इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जैसे भी आपका हो सके। आप उनको पैसे दे सकते हो, उनको आप फूड प्रोवाइड कर सकते हो, या किसी को आप अडॉप्ट करना चाहें तो अडॉप्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसी कैलेमिटीज़ में अपने मम्मी पापा को खो देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों को खो देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। इमीडिएट हेल्प आप क्या दे सकते हैं, टू गेट पीपल आउट ऑफ द डेब्रीज इन द अर्थक्वेक, टू सेव फ्रॉम ड्रॉनिंग इन फ्लड एक्सेट्रा। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये तो पुलिस वालों का काम है, वही करेंगे, हम क्यों करें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप भी मुसीबत में होगे तो आपकी भी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। तो अगर आपसे जितना हो सके आप लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचो कि हम एम्बुलेंस आने का वेट करेंगे या पुलिस के आने का वेट करेंगे। अगर आप जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं आपको करना चाहिए। Quick medical help, to take to the doctor or call the doctor at the place itself as they need maybe. तो यहाँ पे आप मेडिकल हेल्प के लिए बुला सकते हैं किसी को भी। फूड और एंड अदर एसेंशियल्स, टू प्रोवाइड फूड, वाटर, क्लॉथिंग, टेंट्स एक्सेट्रा। रिहेबिलिटेशन, टू कलेक्ट कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, क्लॉथ्स, फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा फ्रॉम द नेबरहुड्स। आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे मैं अकेला कितना दे पाऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे दूंगा, 100 दे दूंगा, 50 दे दूंगा, तो आप काउंट्री भी कर सकते हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके नेबर्स हैं, उनसे आप पैसा इकट्ठा करके ऐसे लोगों की हेल्प के लिए एनजीओज़ वगैरह को दान दे सकते हैं। Now brainstorm, suppose a disaster has occurred in one of the cities of your country. Many people have become homeless. Food and water supply has become scarce. How can you help these people in the time of disaster? अब यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि सपोज अगर आपके आसपास कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटीज़ अकर करती है, लोग उसमें फंसे हुए हैं, उनका घर बार छिन गया है या तबाह हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे ये आपको बताना है। First aid for some common emergency situation. Before the help arrives, there are some things you can do to help others. Emergency treatment given to an accident victim before medical help becomes available is called first aid. तो जो भी हम मेडिकल हेल्प आने से पहले जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं किसी इंजर्ड पर्सन को, वो फर्स्ट एड कहलाता है। फर्स्ट एड इज़ गिवन टू प्रिवेंट द विक्टिम्स कंडीशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स, सेव हिज और हर लाइफ एंड स्पीड अप द चांस ऑफ रिकवरी। इससे क्या होता है, आप किसी की जान बचा सकते हो। सपोज किसी का ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है, अगर आप यूं ही देखते रहेंगे कि डॉक्टर आएगा या एम्बुलेंस आएगी, वो इसको उठा के लेके जाएंगे, तो उससे क्या होता है, उसकी लाइफ जा सकती है। अगर आप उसको बैंडेज वगैरह उसी टाइम कर देंगे, फर्स्ट एड कर देंगे, तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। इसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले बैंडेज होना
चाहिए, कॉटन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, ग्वाज होना चाहिए, स्मॉल सीजर होनी चाहिए, बर्नॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का हाथ जल भी जाता है तो उसमें आप एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं। थर्मामीटर होना चाहिए, ठीक है, अगर किसी का बुखार वगैरह आपको चेक करना है, ये आपके घर में बना के आप रख सकते हैं। ORS पैकेट्स ये आप इजीली खरीद सकते हैं, फोर्सेप्स खरीद सकते हैं, टैबलेट्स फॉर फीवर, वॉमिटिंग, एसिडिटी एक्सेट्रा, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं। हमारा हेडेक होता है, पेट दर्द होता है, हमें फीवर आता है, तो ये सब चीज़ें आपको अपने फर्स्ट एड में रखनी चाहिए। The 3 rules a first aider should keep in mind are to stay calm, act fast, try to arrange for doctor as far as possible. Let's read about a specific first aid for some common emergencies and injuries. ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ और ईयर। कई लोगों को ऐसा होता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से उनके क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग आती है, माउथ से आती है, ईयर से आती है। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? फॉर अ नोज ब्लीड, मेक द विक्टिम सिट ऑन अ चेयर विद हिज हेड स्लाइटली फॉरवर्ड एंड पिंच हिज नॉस्ट्रिल फॉर फ्यू सेकेंड्स. Let him breathe through his mouth in the meantime. If there is bleeding from the mouth, turn the person on his or her side to prevent choking. तो नोज़ ब्लीडिंग जब होती है तो आपको उसका सर जो है वो ऊपर की तरफ रखना है, नीचे की तरफ रखेंगे तो उसकी और ब्लीडिंग होगी। अगर आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो ब्लड जो है बाहर की तरफ नहीं आएगा। उसकी नोज़ को आपको बार बार पिंच करना है, ठीक है, और उसको आपको काम रखना है। ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स एंड वुंड्स, वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर टचिंग द वुंड. Clean it with an antiseptic solution and cover with a band-aid if available. Cover with a cotton pad and bandage it. Raise the wound above the level of the heart to slow the flow of blood to that area. अगर ब्लीडिंग होती है, जैसे कि कट वगैरह किसी को लग जाता है, चोट लग जाती है, तो इसमें सबसे पहले आप अपने खुद के हाथ धोएंगे उस वूंड को टच करने से पहले। उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन से उसको क्लीन करेंगे, अच्छे से उसको साफ़ करेंगे। अगर आपके पास सोप और वाटर है तो और भी अच्छा है, आप उससे उसे धोने को कह सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप क्या करेंगे, बैंडेज लगाएंगे। For severe burns, cool the burn by running cold tap water over it for at least 10 minutes. Cover the burn with a clean cloth to keep germs away from the wound. Do not break the blisters or remove any cloth sticking to the wound. बर्न जब होता है ना, जब किसी का जल जाता है तो उस वूंड पे हम बैंडेज नहीं लगाते, ठीक है, उसको हम कोई भी एंटीसेप्टिक लगा करके खुला छोड़ देते हैं। पहले आपको क्या करना है, आप आइस लगा सकते हैं या ठंडे पानी में उसको थोड़ी देर रख सकते हैं, उस पर्सन को आराम मिलेगा। लेकिन उसको कभी भी हमको किसी भी पट्टी से कवर नहीं करना होता, नहीं तो वो जो पट्टी है ना वो उसी पे चिपक जाएगी। Fracture, a crack in the bones is called a fracture. Thin piece of wood, cardboard or even folded newspaper sheet can be used as a splint to prevent further dislocation of the cracked bone. The purpose of the splint is to protect the wounded part from further damage until medical help arrive. अब फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं, कभी कभी खेलते खेलते किसी का क्या हो जाता है, हाथ मुड़ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, बोन क्रैक हो जाती है, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, उस पार्ट को आप या तो लकड़ी के आप किसी लट्ठे से उसको बांध सकते हैं या आसपास न्यूज़पेपर कवर कर सकते हैं, एक स्प्लिंट आप बना सकते हैं ताकि जो वुंड वाला पार्ट है वो हिले डुले ना। स्प्रेन वाली सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एन इंजरी टू एनी जॉइंट और मसल इज अ स्प्रेन, रैप सम आइस क्यूब्स इन अ टॉवल, अप्लाई दिस कोल्ड कंप्रेस ऑन द इंजरी, आफ्टर 30 मिनट्स रेज द इंजर्ड लिम्ब एंड बैंडेज इट फर्मली फॉर सपोर्ट। अब स्प्रेन आ जाता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारी मसल्स वगैरह या किसी जॉइंट में इंजरी हो जाती है, वो स्प्रेन कहलाता है। ऐसे टाइम पे आपको आइस क्यूब से उसकी सिकाई करनी है। Choking, when some foreign element goes into the windpipe instead of the food pipe and the person cannot breathe, it is called choking. Encourage the person to cough out, keeping the person heads lower than the chest, slap between the shoulder blades with the help of your palm for 2 to 5 times. Acting quickly can save a life. With a little basic training, we can all become capable of helping each other in case of an emergency. Also, being aware of what to do during natural disasters and whom to ask for help can help reduce the extent of damage. It is our collective responsibility as a member of a community or locality to offer our help and support to those who need it. This would reduce the burden on the government and give us an opportunity to
contribute effectively. अब चोकिंग एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, हम खाते खाते जो हमारा खाना होता है कभी कभी वो क्या होता है, विंड पाइप में चला जाता है. जब वो विंड पाइप में चला जाता है तो हमारे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस इंसान को बोलना चाहिए कि वो रेगुलर क्या करे, कफ करे. ठीक है, और आप उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बेंड कर करके उसकी पीठ पे आप ऐसे थप कर सकते हैं. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सीख लें तो हम अपनी सरकार की या डॉक्टर्स की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं. Now brushing up, earthquakes, volcanoes, tsunamis, cyclones, floods, droughts and famines are some forms of natural disasters. Many non-government organizations and many agencies of the United Nations and several national and international organizations work actively to provide relief and help in the process of rehabilitation of disaster affected people. First aid is the emergency treatment given to an injured person before professional medical help arrives. तो इस चैप्टर में हमने अलग अलग जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनके बारे में जाना, अगर ये आती हैं कैसे आती हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमें फर्स्ट एड देना चाहिए, इन सब के बारे में भी हमने सीखा. Let's practice now. Tick the correct option. The intensity of an earthquake is measured by, किस में मेजर किया जाता है, सिस्मोमीटर में मेजर किया जाता है. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे. हम बढ़ते हैं आगे. fill in the blanks with suitable words. War and dash may lead to an emergency. तो आप क्या लिखेंगे, war and natural calamities may lead to an emergency, क्योंकि ये कभी भी आ सकती हैं. ठीक है. Write T for true and F for false. Earthquakes are caused due to less rainfall. क्या ये सही है, तो ये गलत है. Answer the following questions. What do you understand by emergency? Emergency क्या होती है? Emergency ये आपके natural disasters होते हैं या war की वजह से भी ये आ सकते हैं. तो ऐसे टाइम पे आपको क्या रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए. Full time your brother falls and cuts his knee while playing cricket in park. You bring your brother at home but your parents are not there. Look at the picture and say what first aid will you give him to stop the bleeding. ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको फर्स्ट एड देख करके बताना है, क्योंकि आपके मम्मी पापा घर में नहीं है तो आपको खुद स्मार्ट बनना पड़ेगा और अपने ब्रदर की हेल्प करनी होगी. Dig further. How are fishermen affected by a tsunami? आपको बताना है सुनामी की वजह से जो फिशरमैन होते हैं कैसे इफेक्ट होते हैं. Why do you think the UN and its agencies play such an important role in relief efforts? तो इनके बारे में भी आपको बताना है, जो UN और उनकी एजेंसीज़ हैं वो कैसे हेल्प करती हैं लोगों को रिलीफ पहुंचाने में. Do something good. Why should we do all we can to help those affected by disaster even if we do not know them personally? तो हम लोगों को जो फंसे हुए होते हैं या किसी डिज़ास्टर से इफ़ेक्टेड होते हैं उन लोगों की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि नोन लोगों को मतलब जिनको हम जानते हैं उनकी हेल्प हम करते हैं, लेकिन वो सब लोग हमारे लिए अननोन होते हैं. लेकिन ऐसे टाइम पे भी हमको क्या दिखानी चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए, उनके काम आना चाहिए. I can do this. Collect picture of a recent natural disaster in your scrapbook. Write a few lines about the disaster. How many people were affected in the relief efforts, etc. अब आपको ऐसे डिज़ास्टर के बारे में बात करनी है, डिस्कस करना है या पता लगाना है जो अभी रिसेंटली हुआ है. एक आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप अपनी स्क्रैप बुक वगैरह में लिख सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कितने लोग उससे इफेक्टेड हुए, कैसे कैसे उनको रिलीफ वगैरह पहुंचाया गया. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.